Rahim. Last time we have done the autonomic nervous system up to this slide, in which we learn that what is autonomic nervous system basically, what are its components like sympathetic and parasympathetic component. Sympathetic component is also known as thoracolumbar outflow, while parasympathetic component is known as craniocervical outflow. Craniosacral outflow, I'm sorry. Because sympathetic is from T1 to L2 and parasympathetic is cranial nerve 3, 7, 9, 10, 4 cranial nerves and S2, S3, S4 segment of the sacral plexus. Okay, everybody's hearing, everybody's understanding? Okay. The differences, I told you that the first difference is the length of the pre and the post ganglionic fiber. मैंने बताया था आपको कि दो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक होता है उसका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो होता है वो स्मॉल होता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर लार्ज होता है, वाइल पैरासिम्पैथेटिक का प्री लॉन्ग होता है और पोस्ट जो होता है वो स्मॉल होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करेगा अपने टारगेट टिश्यू पे, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा। तीसरा मैंने आपको बताया था, ये रहा डिफरेंसेस कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम गैंग्लियन में सिंपैथेटिक भी क्या रिलीज करेगा आपका एसिटाइलकोलिन, बट मैं बात कर रहा हूँ टारगेट ऑर्गन की। टारगेट ऑर्गन पे सिंपैथेटिक नॉरएपिनेफ्रिन करेगा, जबकि आपका पैरासिम्पैथेटिक, अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आपका पैरासिम्पैथेटिक जो है वो आप देख सकते हो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है, एसिटाइलकोलिन। सो और एक डिफरेंस और मैंने बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं which they do not synapse in the ganglia but they go directly in the wall of the adrenal medulla, and in the adrenal medulla they release acetylcholine, and in response to that acetylcholine there is no postganglionic fiber, rather the epinephrine and norepinephrine are released directly into the blood. So the first difference again, pre is small in the sympathetic, pre is large in the parasympathetic. Number two, sympathetic is secreting norepinephrine into the target tissue, while the parasympathetic secreting is acetylcholine at the target tissue. Number three, few of the sympathetic fibers, they do not directly synapse in the ganglia, rather they go to the adrenal medulla where they synapse and releases norepinephrine and epinephrine directly into the blood, because epinephrine and norepinephrine is stored in the adrenal medulla. Number four difference, I told you that three places in the body, there are three places in the body where, yes, where the fibers are sympathetic but they release acetylcholine. And I'll tell you what. So number one is the sweat gland, number two is the skeletal muscle, and number three is the piloerector muscle of the hair. Okay? Okay. And you can see here, this is the pathway that the preganglionic. अच्छा, okay. और कहाँ से निकलता है जनाब ये, अगर आपको याद हो, where the sympathetic fibers are arising in the anterior horn, posterior horn, where, in which horn? The lateral horn. Lateral horn से निकलते हैं, good, ये भी पता था. Okay. So cholinergic fiber releases non-neurotransmitter acetylcholine, all autonomic nervous system preganglionic axon, all parasympathetic postganglionic axon we know. Adrenergic fiber, most sympathetic postganglionic axons, exception, sympathetic postganglionic fiber secrete acetylcholine as sweat gland, some blood vessels in the skeletal muscle, and the piloerector muscle of the hair. Okay, parasympathetic nervous system is the Parasympathetic is a subdivision of peripheral nervous system. कोई नई बात नहीं है. Not under conscious control. Okay. सही बात है. They are involuntary. Controlled by medulla oblongata and hypothalamus. हाँ, ये this is the important thing. जो sympathetic और parasympathetic nervous system होते हैं, उनके कुछ nuclei होते हैं, and they nuclei are basically present in the medulla and the hypothalamus. Parasympathetic nervous system supplies stimulation via motor nerves to smooth and the cardiac muscle and the gland.
तो ये जो है वो स्मूथ और कार्डिक मसल्स को और ग्लैंड को भी सप्लाई कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। सर नॉरएपिनेफ्रिन को एट सेम टाइम हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर, यस यस यू आर राइट, बिकॉज देखो न्यूरोट्रांसमीटर हम उस वक्त कहेंगे जब वो नर्व से निकल के नर्व पैक कर रहा हो, और हार्मोन हम उस वक्त कहेंगे जब वो डायरेक्टली ब्लड में आ रहा है। तो अगर अगर आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना चाहते हो, सो आप ये कहोगे वो नॉरएपिनेफ्रिन विच इज रिलीज फ्रॉम एड्रिनल मेड्यूला इज अ हार्मोन बिकॉज गोइंग डायरेक्टली इनटू द ब्लड। वो नॉरएपिनेफ्रिन जो नर्व पे निकल रहा है दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। मगर जब दोनों ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हो एक साथ, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कौन सा है? मगर आप यस अकॉर्डिंग टू द रिलीज आप कह सकते हो, यस यू आर राइट। अच्छा जी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और इसको जो है वो हम यूँ कहें कि इसका क्या बायो फीडबैक है, यानी कि ये कौन कौन सी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। तो कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक लाइक एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन से कुछ लोग कहते हैं कि जी वो लोग कंट्रोल करते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम अपनी हार्ट बीट को, अपने रेस्पिरेटरी रेट को, अपनी गट मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डायग्नोसिस अगर हम कर लें कि इस किस वक्त ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है, तो हम बहुत सारी डिजीज़ को भी डायग्नोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पता हो कि सिंपैथेटिक नर्वस फ्लो तेज़ है या स्लो है, हम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, हम कार्डिक प्रॉब्लम्स को, ब्लड प्रेशर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो ये स्लाइड बेसिकली है कि what is the feedback and how we can control the autonomic nervous system, what is the uses of autonomic nervous system monitoring devices। कि हम उनको डिवाइसेस को कंट्रोल करना सीख लें या उनको मॉनिटर करना सीख लें तो हम कर सकते हैं। अगर आप ये डिवाइस, अगर आप ये स्लाइड स्किप करना चाहते हो, यू कैन स्किप दिस स्लाइड। मेरा एक क्वेश्चन है, did sympathetic and parasympathetic insomnia, insomnia means lack of sleep, loss of sleep, like person is unable to sleep is called insomnia, और इसका जो ऑपोजिट है वो है सोमनोलेंस, यानी कि मोर प्रोन टू स्लीप। ठीक है, सोमनोलेंस एंड इंसोम्निया। अच्छा, मेरा सवाल ये, क्या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक वर्क एंटागोनिस्टिकली? क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं? Did sympathetic and parasympathetic work antagonistically? No. Okay. Anyone else? Shankar, can you give an example? If not, eject means what? We can say the answer is quite good by roll number 61. She says that usually yes. Yes, usually most of the time it is yes, because अगर हम बात करें कि हम कहते हैं कि जी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट तेज करता है, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट कम करता है। अगर हम कहें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो मिड्रियासिस कराता है, प्यूपिलर डायलेशन, तो पैरासिम्पैथेटिक मियोसिस कराता है। अगर हम कहें सिंपैथेटिक जो है ब्रोंको डायलेशन कराता है, पैरासिम्पैथेटिक ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है। अगर हम कहें सिंपैथेटिक जो है जीआईटी की डायलेशन कराता है, जो जीआईटी की वॉल है उसकी रिलैक्सेशन कराता है, पैरासिम्पैथेटिक की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। यूजुअली येस बट समटाइम्स नो, बिकॉज हर जगह हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, तो इस स्लाइड में ये कह रहा है कि दे वर्क एंटागोनिस्टिकली, हम इसको पूरी तरह एग्री नहीं करते हैं, और ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर कहाँ कहाँ किस किस तरीके से हमारे फाइबर्स निकलते हैं। जैसे सीएनएस से कोई भी माइलिनेटेड मोटर आएगा। अब सीएनएस मोस्ट एंटागोनिस्ट बट इन सेक्सुअल इंटरकोर्स दे एक्ट सिनर्जिस्टिक। यस, ओके। अब ये कह सकते हैं हम लोग जनाब के, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं बोलूँ सीएनएस से एक माइलिनेटेड मोटर न्यूरॉन निकलता है, और वो माइलिनेटेड मोटर न्यूरॉन हाइपोथैलेमस या मेडुला से निकला, और वो बेसिकली फाइबर्स कैरी कर रहा था सिंपैथेटिक, तो वो उसी तरह आपके एंटीरियर मोटर हॉर्न पे आएगा, और उस एंटीरियर मोटर हॉर्न से आपका ऑटोनॉमिक फाइबर्स निकल के लेटरल पे जाएंगे और वहाँ से ये सप्लाई करेंगे, जो कि आपको एग्जाम्पल कोड कर रहा है, दिखा भी रहा है। मैं आगे कर रहा हूँ, स्लाइड्स में कोई बहुत ज़्यादा जान नहीं है, तो इसलिए मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल, मैं स्लाइड को ख़त्म करता हूँ, यानी अभी नहीं दिखा रहा। आप बताओ कोई एग्जाम्पल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, बॉडी पे एक्शन करने की।
अगर आप समुद्र में तैर रहे हो किसी बीच पे और आपको ऐसी शार्क मुंह फाड़ के नजर आती है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? व्हाट विल बी योर रिएक्शन? इंक्रीज हार्ट रेट। गुड। सिर्फ हार्ट रेट ही सब बता रहे हैं और कुछ? और कुछ? एंजाइटी, ठीक है। अच्छा चलो, इंक्रीज कार्डिक एक्टिविटी, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डायलेशन ऑफ स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स, मैं गलत तो नहीं करा? यू आर राइट। कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स इन द स्किन, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। सो हम कहते हैं ना फियर फ्लाइट एंड फाइट। सो मेरे भाई, जब आपको डर हो, जब आप फ्लाइट कर रहे हो, यानी कि कोई फ्लाइट, तो इन्होंने एग्जाम्पल दी, वो वाली फ्लाइट नहीं है, बट आप किसी ऐसी डिप्रेसिव कंडीशन में हो, जब आप फाइटिंग एक्टिविटी में हो, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा हार्ट रेट चाहिए, आपको ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, आपकी आंखें फैल जाती हैं खौफ से। तो उन जगहों पे जहाँ ब्लड सप्लाई ज़्यादा है वहाँ से कम करके आपके मसल्स को दी जाती है। सो इसीलिए इंक्रीज कार्डिक एक्टिविटी, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डायलेशन ऑफ स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल इन स्किन, क्योंकि भाई स्किन को अगर ब्लड सप्लाई दे दी उस टाइम पे तो स्केलेटल मसल को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। डायलेशन ऑफ प्यूपिल, इनहिबिशन ऑफ गट एंड यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन, उस वक्त हमें गट को ज़रूरत नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर को ज़रूरत नहीं है। ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स की डायलेशन कर दो, रिलैक्स कर दो ताकि ज़्यादा ऑक्सीजनेशन करे वो आदमी। सिक्रीशन ऑफ विस्कस सलाइवा, स्वेटिंग होती है ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, उसकी मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा ना बढ़े। लो थ्रेशोल्ड फॉर रेटिकुलर फॉर्मेशन एक्टिविटी, उस वक्त रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है जनाब? कुछ पता है किसी को? व्हाट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड व्हाट इट वर्क्स? मैंने शायद एक दफ़ा क्लास में कभी ऐसे ही चलते चलते बताया था। व्हाट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन, कहाँ होती है ये? तो जल्दी जल्दी आंसर दो यार, बहुत स्लो आंसर दे रहे हो। रेटिकुलर फॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन मिड ब्रेन, मेड्यूला एंड पॉन्स। गुड, ठीक है। और रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होती है ब्रेन स्टेम में, वेरी गुड। और रेटिकुलर फॉर्मेशन का बेसिक काम है ये अवेकनिंग फंक्शन कराता है, हमें जो उठाता है, हमें जो जगा के रखता है, वो मोस्टली रेटिकुलर फॉर्मेशन है। अगर कोई आदमी को रेटिकुलर फॉर्मेशन को आप स्टिमुलेट करते रहो तो ये हमें अवेक करता है, कंट्रोल करता है कॉन्शियस वर्क को। वेरी गुड साहिबा, दैट्स अ गुड गुड आंसर। सो ये लो थ्रेशोल्ड होता है, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो आदमी बहुत कम थ्रेशोल्ड पे भी एक्टिव हो जाएगा, ज़रूरत नहीं उसको बहुत ज़्यादा झंझोड़ने की, ज़रूरत नहीं। और उस सूरत में लिवर ग्लूकोज ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा ताकि एनर्जी पहुंचे मसल्स को। तो आप ये पूरी स्लाइड देखो, इज़ अ वेरी गुड पैकेज दिस स्लाइड विच शोज कि जनाब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो फेयर फ्लाइट एंड फाइट में होता है, और जब वो फेयर फ्लाइट एंड फाइट पे काम कर रहा होता है, एट दैट मोमेंट इट नीड्स ऑल द एक्टिविटीज, बिकॉज उस वक्त हमें ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, बिकॉज उस वक्त हमें ज़्यादा ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत होती है, बिकॉज उस वक्त हमें ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। सो ये सारे काम सिंपैथेटिक करता है। अब अगर आप आंख बंद करके इस स्लाइड के बगैर पूछे वापस जाके जल्दी से 3-4 फंक्शन गिनवाओ मुझे सिंपैथेटिक के, तो इंक्रीज हार्ट रेट, नंबर 2, यस देखो, इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू मसल्स, गुड, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक, इतने सारे बच्चे हो यार। इंक्रीज स्मूथ मसल ब्लड फ्लो, ठीक है। डिक्रीज टू स्किन स्केलेटल मसल ब्लड फ्लो, नॉट स्मूथ मसल, ठीक है। स्वेटिंग कॉन्शियस लेवल को इंक्रीज करता है, दैट्स वेरी गुड, फाइन, ओके जी। जबकि इसके ऑपोजिट है जनाब हमारा पैरासिम्पैथेटिक। अब वो क्या करेगा? वो तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट है, तो हमें ब्लड सप्लाई की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेगा जनाब? जीआईटी को ज़्यादा ब्लड सप्लाई पहुंचा देगा, यूरिनरी ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को ब्लड में डालेगा, ब्रोंक्युलर कंस्ट्रक्शन कराएगा, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी ऑक्सीजन की, जितनी है वो काफ़ी है। कार्डिक एक्टिविटी को कम करेगा, वाटरी सलाइवा को बढ़ाएगा, वो विस्कस सलाइवा बढ़ा रहा था, ये क्या बढ़ा रहा है? वाटरी सलाइवा करा रहा है। और जीआईटी की स्टिमुलेशन या सिक्रेशंस को बढ़ाएगा, क्योंकि अभी हमें ब्लड की ज़रूरत नहीं है स्केलेटल मसल को, तो दूसरे बॉडी के पार्ट्स को भले ब्लड मिले आराम से, नो नीड। तो इसी में डायूरेसिस भी हो जाएगी, डेफिकेशन भी होगी, ठीक है ना।
सो डेफिकेशन एंड डायूरेसिस कराएगा, और जनाब इंक्रीज स्मूथ मसल एक्टिविटी, इंक्रीज स्केलेटल मसल ब्लड सप्लाई, ये सारे काम करेगा। सो हम ऑपोजिटली गिन सकते हैं। Sir, can insulin and glucagon increase at the same time? Yes, we can say that the insulin and glucagon increase at the same time, because ये अगर ये बात कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की डायरेक्ट स्टिमुलेशन की, ये नॉर्मल की बात नहीं कर रहा। एक बात तो ये समझ लो, अगर हम सिर्फ पैरासिम्पैथेटिक को आइसोलेटेड कंडीशन में दें तो ये दोनों चीज़ों को बढ़ा सकता है, क्योंकि ये बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स दोनों को स्टिमुलेट करता है। मगर नॉर्मली जब हम बात कर रहे होते हैं कि सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक की, तो उस वक्त हमारी बॉडी ग्लूकोज लेवल जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है इंसुलिन की सिक्रीशन को। अगर बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो सर यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन क्यों करता है, पैरासिम बताता हूँ, पहले तो वो सुन लो। तो अगर इंसुलिन में अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा तो इंसुलिन ज़्यादा निकलेगा, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तो ग्लूकागॉन ज़्यादा निकलेगा। ये नॉर्मल है, मगर अगर डायरेक्टली एक्टिविटी करें। अच्छा, अब दूसरी बात भाई, स्मूथ मसल है जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, इसका स्मूथ मसल का नाम है भूल गया इसको। जो स्मूथ मसल होता है यूरिनरी ब्लैडर का, और जितने भी यूरिनरी डेट्रूसर मसल, दैट्स वेरी गुड, थैंक यू। तो इस डेट्रूसर मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। जितने भी स्मूथ मसल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उनके अंदर जो है वो मस्कैनिक रिसेप्टर के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन कराता है और स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन कराता है, ये याद रखना। इसीलिए जीआईटी के अंदर भी स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करके उनकी पेरिस्टाल्टिक वेव्स को बढ़ाता है। ठीक है जी। Site of synapse between pre and the post ganglia, sympathetic trunk ganglia located from base to skull to coccyx, ये मैंने बता दिया है। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक चेन होती है और वो जो जनाब आपके एक तो T1 से लेके L2 तक चल रहे होते हैं, और कुछ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया जिसमें हम कुछ सिंपैथेटिक फाइबर्स जो डायरेक्ट सप्लाई होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, तो वो फैले हुए भी होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं सीलिएक गैंग्लिया, सुपीरियर मीजेंट्रिक गैंग्लिया, इंफीरियर मीजेंट्रिक गैंग्लिया, सर्वाइकल गैंग्लियन होते हैं कुछ, जो कि सिंपैथेटिक फाइबर्स को लेके जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये तो आप कह रहे हैं T1 से L2, जी जनाब ये निकलती सप्लाई T1 से L2 तक ही है, मगर ये T1 से ऊपर जाके उन गैंग्लिया के थ्रू सप्लाई करता है डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, क्या सिंपैथेटिक T1 से ऊपर सप्लाई नहीं करेगा? करेगा। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूं, T1 T2 निकला और उसने ऊपर जाके सर्वाइकल गैंग्लिया बनाया और सर्वाइकल गैंग्लिया से वो सर्वाइकल बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई कर रहा है। इसी तरह L2 से या L1 से कोई फाइबर्स निकले सिंपैथेटिक के, और वो जनाब आ गए सीलिएक या मीजेंट्रिक गैंग्लिया में, और वो जीआईटी के एब्डोमिनल पार्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ सिंपैथेटिक के ट्रंक गैंग्लिया भी कहलाते हैं। पैरावर्टिबल गैंग्लिया मैं पहले ही बता चुका, इनोवेट ऑर्गन बिलो द डायाफ्राम। ठीक है जी, डायाफ्राम के बिलो इसने नई बात कह दी है, वरना जो जो इसके रीजन में आ रहे हैं। और पैरासिम्पैथेटिक का गैंग्लिया कहाँ होता है? बिल्कुल क्लियर है कि पैरासिम्पैथेटिक का गैंग्लिया जनाब ऑर्गन में होता है, ऑर्गन वॉल में या ऑर्गन के बहुत क्लोज होता है। When there is no escape route or no way to win, causes massive activation of parasympathetic division, loss of control over urination and defecation. फर्ज करो आप कमरे में जाते हो, आप सोए हो, सोने के बाद जैसे ही आपको बिस्तर पे हाथ पड़ा, आपको लगा कोई चीज़ है, आपने लाइट जलाई, आपके बिस्तर पे सामने एक सांप पड़ा हुआ है, स्नेक है, और बहुत जहरीला स्नेक है, एंड इफ़ यू मूव यू विल डाई, वो आपको बाइट कर लेगा। या कोई भी ऐसी कंडीशन, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, जब आपके पास कोई एस्केप नहीं हो, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एग्रेवेट होता है, इट जस्ट कोलैप्सेस, एंड पैरासिम्पैथेटिक उसको ओवरकम कर जाता है। और उस वक्त हम कहते हैं ना कि यार किसी का यूरिन आउट हो गया खौफ की वजह से, किसी को डेफिकेट कर गया खौफ की वजह से, कोई बहुत गुस्से में था, बहुत डिप्रेस था, तो ये कंडीशन उस वक्त आती है, उसे हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल फेयर। पैराडॉक्सिकल, आपको पता है कि पैराडॉक्सिकल मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ सीधी चलते चलते उसके बिल्कुल उलट काम होना शुरू हो जाए, इसे हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल। तो ऐसा होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इस पिक्चर को देखो। अब ये मैं बात कर लेता हूँ, आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी जो हम बात कर रहे थे, ये देखो। सो इस कंडीशन में सिंपैथेटिक एक्टिव होना चाहिए, सिंपैथेटिक एक्टिव होता है, मगर
अब वो इतना एक्टिव हो गया कि पीक पे पहुंच के हम कह सकते हैं कि वो कोलैप्स कर गया एंड पैरासिम्पैथेटिक टेक्स ओवर। अच्छा जी, ये आपको मैं पिक्चर बताऊं जो मैं बात कर रहा था ट्रंक गैंग्लिया की। देखो कहाँ गया ये, आप ये देख रहे हो, ये T1 से निकल रहे हैं, ये तो पैरावर्टिब्रल गैंग्लियोनिक चेन में जा रहे हैं, और ये L2 तक आप देख सकते हो। मगर आप अगर यहाँ देखो तो देखो ये बात कर रहा है उन ट्रंक गैंग्लिया की। देखो ये ऊपर गए फाइबर्स, और ये यहाँ ऊपर गए, ये इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ये मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन, ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, फिर यहाँ पे आप देखो सीलिएक गैंग्लियन, फिर आप यहाँ पे देखो सुपीरियर मिजेंट्रिक गैंग्लियन, फिर आप यहाँ पे देखो इन्फीरियर मिजेंट्रिक गैंग्लियन। तो ये वो गैंग्लियन है जिनको वो ट्रंक गैंग्लिया कह रहे हैं, क्योंकि जनाब सिंपैथेटिक को सप्लाई तो पूरी बॉडी को करना है, और आप कह रहे हो T1 से L2 तक निकलता है, तो जनाब T1 से L2 तक निकलने के बाद फिर वो अपने कनेक्शंस बनाता है। जो हमने पढ़ा था कि जी ना फाइबर निकला, पैरा वर्टिब्रल गैंग्लियन में गया, वहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक निकला, वो तो एक नॉर्मल रूट था। अब ये रूट भी तो हमें पढ़ना है कि फाइबर यहाँ से निकला, इसने यहाँ पे कहीं पैरावर्टिब्रल में साइनेप्स नहीं किया, बल्कि इसने जाके एक ट्रंक गैंग्लियन में, जिसको हम कह सकते हैं कि एब्डोमिनल गैंग्लियन में, वहाँ साइनेप्स किया, और वहाँ से वो निकल के फिर एब्डोमिनल विसरास को सप्लाई कर। ठीक है, तो आप अपनी चौथी एक्सेप्शन में से मैंने कहा था प्री बड़ा छोटा होता है, पोस्ट बड़ा होता है, मैंने कहा था कि एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन एडिनल मेडुला से निकलता है, मैंने कहा था कि स्वेट ग्लैंड्स, स्केलेटल मसल, ब्लड वेसल्स और पायरोरेक्टर से एसिटाइलकोलिन। एक चौथी भी लिख सकते हो कि कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो पैरावर्टिब्रल गैंग्लियोनिक चेन में साइनेप्स नहीं करते, rather they go directly into the trunk ganglion and there they synapse and supply the organs। पैरासिम्पैथेटिक बड़ा ही आसान है, आप देख सकते हो क्रेनियल नर्व 3, आप देख सकते हो क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 7, क्रेनियल नर्व 9, क्रेनियल नर्व 10, और फिर उनके बाद उनके अपने अपने गैंग्लियन है। ठीक है, फिर वो आप अब जब एनाटॉमी पढ़ोगे तो पढ़ोगे जी सीलियरी गैंग्लियन, बेसिकली इसके अंदर फाइबर्स थर्ड नर्व के होते हैं, किसको सप्लाई कर रहा है, आई को। टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन 7th क्रेनियल नर्व के फाइबर्स होते हैं, किसको सप्लाई कर रहा है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स को। जनाब आपके पास सबमैंडिबुलर गैंग्लियन किसको सप्लाई कर रहा है, वो भी ग्लैंड्स को, फेस के। और जनाब ऑप्टिक गैंग्लियन हार्ट को, वो भी सॉरी इसको ईयर को। और क्रेनियल नर्व 10 में कोई गैंग्लियन नहीं, वो डायरेक्ट सप्लाई कर रही है। इसी तरह नीचे आ जाओ, S2 S3 S4 क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो होता है ना पैरासिम्पैथेटिक का, वो भी देखो ऑर्गन में जाके यहाँ बिल्कुल नियर टू द ऑर्गन, ये ऑर्गन में जाके साइनेप्स कर रहे हैं। मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, ये देखो ऑर्गन में या नियर टू द ऑर्गन, ये कितना ज़बरदस्त है, देखो ये देखो। इसीलिए हम कहते हैं कि प्री बड़ा है, पोस्ट छोटा है। ठीक है, ये रट्टा है, बट इसमें मैं आपको सारा अभी कुछ तो बता चुका हूँ। प्यूपिल को डायलेट करेगा सिंपैथेटिक, कंस्ट्रिक्ट करेगा पैरासिम्पैथेटिक। सिक्रीशंस को ये याद रखना, सिक्रीशंस को कौन बढ़ाएगा, ग्लैंड की सिक्रीशंस को कौन बढ़ाएगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक, जबकि सिंपैथेटिक जो है ग्लैंड की सिक्रीशंस को कम करता है। हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज रेट, डिक्रीज रेट, ये पता है। इस तरह से अगर हम कुछ एक्टिविटीज़ को तुम लोग याद कर लो, आई को स्वेट ग्लैंड्स, हार्ट, लंग्स, जीआईटी पे क्या इफेक्ट है, ब्लैडर पे, ब्लड वेसल्स पे, इन पे क्या इफेक्ट है, ये याद कर लो। अब मैं वापस सवाल पूछता हूँ, पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी होती हैं भाई, जल्दी से जवाब दो। पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी होती हैं? What are the parasympathetic cranial nerves? Can anybody answer? 3, 7, 9, 10. Good. Oculomotor, ये देखा हमने। ऑक्यूलोमोटर निकलेगी कौन से गैंग्लियन में साइनेप्स करेगी, सीलियरी गैंग्लियन में, और किसको सप्लाई करेगी, आई के मसल्स को। यही लिखा हुआ है।
ciliary ganglion, ciliary muscle and pupillary constrictor muscle of the eyeball. Facial nerve, pterygopalatine किसको सप्लाई करेगी? सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, एंड सबमैंडिबुलर गैंग्लियन दो गैंग्लियन है. टीयर्स, सलाइवरी ग्लैंड, नेजल सेक्रेशन को कंट्रोल करेगी. ग्लॉसोफेरिंजियल ऑप्टिक गैंग्लियन पैरोटिड एंड सलाइवरी ग्लैंड को सप्लाई करेगी. और वेगस नर्व का कोई गैंग्लियन नहीं था. अगर आप ये देख लो भाई इस पिक्चर में, वेगस नर्व का कोई गैंग्लियन नहीं. तो वेगस नर्व ब्रांचेस होंगी और वो किसको सप्लाई करेंगे? हार्ट को, जीआईटी को, मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स को हमारी वेगस नर्व सप्लाई करेगी. तो यहाँ अगर रट्टा मार लो, यहीं अगर याद कर लो कि जनाब पैरासिम्पैथेटिक के तो 2-3 ही गैंग्लियन है, सीलियरी गैंग्लियन है, टेरिगोपैलेटाइन और सबमैंडिबुलर गैंग्लियन है, ऑप्टिक गैंग्लियन है और आपका वेगस नर्व जो ब्रांचेस में. तो सीलियरी, टेरिगोपैलेटाइन, सबमैंडिबुलर, ऑप्टिक गैंग्लियन, 4 तो गैंग्लियन है पैरासिम्पैथेटिक. जो जब जीआईटी में जब आप स्कल पढ़ोगे ना एनाटॉमी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होंगे. अच्छा जी, कुछ प्लक्सेस भी हैं, जैसे अभी इस पिक्चर में मैंने प्लक्सेस आपको दिखाए थे. ये रहे प्लक्सेस, कार्डिक प्लक्सेस आप देख रहे हो. तो सिर्फ ब्रेकियल प्लक्सेस और नहीं. व्हाई वेगस नर्व डू नॉट हैव एनी गैंग्लियन? बिकॉज इसका मैं एग्जैक्ट आंसर था आई विल नॉट गिव यू, बट जो मुझे लॉजिकल आंसर समझ में आता है कि बिकॉज ऑलरेडी ये इतनी ब्रांच नर्व है और इसको बहुत बड़े पार्ट ऑफ द एब्डोमेन को और विसरा को सप्लाई करना है. बाकी कोई बहुत लॉजिकल कोई आंसर मेरे दिमाग में अभी नहीं है, ना ही मुझे पता है. एंड आई विल फाइंड इट एंड गिव इट टू यू. इफ यू फाइंड इट यू कैन आंसर. ओके जी. तो मैं आपको बताया था कि देखो प्लक्सेस खाली ब्रेकियल प्लक्सेस, सर्वाइकल प्लक्सेस, लंबोसेकल प्लक्सेस ये दुनिया में नहीं है. सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक प्लक्सेस भी होते हैं भाई, जिसमें आपको यहाँ नजर आ रहे हैं. ये कार्डिक प्लक्सेस, पल्मोनरी प्लक्सेस, ये मेन प्लक्सेस तो 2 यहाँ नजर आ रहे हैं. ठीक है. और ये देखो यहाँ पे भी आपको ये प्लक्सेस की बात कर रहा है. ठीक है कि देखो ये सारे प्लक्सेस है, प्लक्सेस इन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन. तो बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो जब सप्लाई करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, तो वो बहुत एक बंचेस बना लेते हैं जिसके थ्रू वो सप्लाई करते हैं. ठीक है. इसमें सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन में प्लक्सेस आते हैं. वो प्लक्सेस हैं नर्व्स के जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के इर्द गिर्द होते हैं. इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के इर्द गिर्द जो होते हैं वो इंफीरियर मेसेंट्रिक प्लक्सेस कहलाएंगे. इसोफिगस के इर्द गिर्द होंगे, इसोफिजियल प्लक्सेस कहलाएंगे. अब आप ये देख सकते हो कि ये देखो सुपीरियर मेसेंट्रिक की बात कर रहा है. तो आप यहाँ आ जाओ. सुपीरियर मेसेंट्रिक बेसिकली सप्लाई किसको कर रहा है? देख सकते हो आप. ये देखो, ये आपको मेरा एरो नजर आ रहा है. ये बेसिकली आ रहा कहाँ से? ये T9 से लेके T12 तक के सेगमेंट से. फिर ये सुपेंडियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन में साइनेप्स कर रहा है, फिर वहाँ से प्लक्सेस बना के स्मॉल इंटेस्टीन को मोस्टली सप्लाई कर रहा है. तो आप इस तरह इसको पढ़ सकते हो. मगर बिकॉज फिजियोलॉजिकली हमारा ये टारगेट नहीं है ये कौन सा प्लक्सेस किसको सप्लाई करता है. फिजियोलॉजिकली हमारा सिर्फ टारगेट ये है कि इनके काम क्या है. अब आप यहाँ देख सकते हो. अब आप यहाँ देख सकते हो ये सिंपैथेटिक फाइबर अराइज हुआ स्पाइनल कॉर्ड से, and after rising from the spinal cord it enters into the spinal nerve. और वहाँ पे जाने के बाद ये क्या करेगा? ये साइनेप्स करेगा. ईदर नंबर 1, ईदर या तो ये साइनेप्स करेगा किसमें? आपके डायरेक्टली आपके प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया पे आ जाएगा जो सीलियक और आपके सुपीरियर इंफीरियर मेसेंट्रिक थे. या फिर अगर ये साइनेप्स करेगा आपके किस पे? पैरावर्टिब्रल गैंग्लियोनिक चेन पे, तो ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है. ठीक है. तो स्पाइनल नर्व से निकला, स्पाइनल नर्व से निकलने के बाद इसने साइनेप्स किया गैंग्लियन में, आपके पैरावर्टिब्रल में, और अगर नहीं किया तो प्री वर्टिब्रल में आया और ये साइनेप्स करके अपने अपने ऑर्गन को सप्लाई करेगा. ठीक है. आप बताओ रिफ्लेक्सेस कुछ आपको पता है? ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? कौन कौन से ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस हो सकते हैं?
Is there any autonomic reflex? ब्लिंकिंग ऑफ आई, अब हम ब्लिंकिंग ऑफ आई को तो नहीं कहेंगे, हम कह सकते हैं प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स। ठीक है, सही है। सडन विड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग समथिंग हॉट, नहीं। ये बताओ जी, ये जो बच्ची ने बताया है नी जर्क, सडन विड्रॉल, ये ऑटोनॉमिक है? नहीं, पहले नी जर्क का बताओ, और जो सडनली हॉट टॉपिक, हॉट सब्जेक्ट को अटैच किया था, वो ऑटोनॉमिक है? वो तो हमारा क्या था, वो तो हमारा स्ट्रेच रिफ्लेक्स था, जो हमारा मोटर न्यूरॉन के थ्रू आ रहा था, सोमेटिक रिफ्लेक्स था वो और बात है, वो इनवॉलेंट्री था। डाइजेशन, ब्लड प्रेशर रिफ्लेक्सेस, डेफिकेशन, यूरिनेशन, ये सारे हमारे रिफ्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं? ये ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस कहलाते हैं। हमने खाना खाया, ऑटोमेटिकली डाइजेशन हो रही है, मूवमेंट ऑफ जीआईटी हो रही है, पानी यूरिनरी ब्लैडर में बढ़ गया, ऑटोमेटिकली हमें मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स आएगा। अगर हमारे रेक्टम में जो है वो स्टोरेज हो गई है वेस्ट प्रोडक्ट की, तो ऑटोमेटिकली हमारे रेक्टम उसको इवैक्यूएट करेगा। मगर ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स हो या सिंपल रिफ्लेक्स आर्क हो, जनाब कंपोनेंट वही 5 होंगे। क्या 5 को? वॉमिटिंग भी है, बिल्कुल सही। कफ रिफ्लेक्स भी कह सकते हो आप। जो कंपोनेंट है वही 5 होंगे। कौन से 5 होंगे रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट? रिसेप्टर, जहां से सेंसेशन रिसीव हुई, सेंसरी न्यूरॉन लेके इंपल्स जाएगा, सीएनएस और स्पाइनल कॉर्ड उसको इंटीग्रेट करेंगी, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो मोटर न्यूरॉन होगा वो ये बताएगा कि जनाब क्या काम करना है। और इफेक्टर इसका कहाँ होगा? या तो हार्ट रेट होगा, या ग्लैंड्स होंगे, या स्मूथ मसल्स हैं। मैंने अभी बताया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए मेनली हमारे पास हाइपोथैलेमस और मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेजर कंट्रोल इंटीग्रेशन सेंटर ऑफ द एएनएस। उसमें फिर एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस है, पोस्टीरियर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर हमारा वेजोमोटर सेंटर है, हमारा न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है, हमारा जो है वो स्वॉलोइंग सेंटर है। दे ऑल आर द कंट्रोलर ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इन सवालों के जवाब आते हैं। पहला सवाल, व्हाट न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रोड्यूस फ्रॉम सोमैटिक नर्वस सिस्टम? सोमैटिक से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा? गुड। सिंपैथेटिक से? सिंपैथेटिक से, सिंपैथेटिक से नॉरएपिनेफ्रिन, और पैरासिम्पैथेटिक से एसिटाइलकोलिन। व्हाट इफेक्टर ऑर्गन्स आर टारगेटेड फ्रॉम एएनएस? कौन कौन से इफेक्टर ऑर्गन्स हैं जो कि टारगेट होते हैं? मोस्टली क्या होते हैं, अगर हम एक सिंपल आंसर देना चाहें? वाइटल ऑर्गन्स कह लो या विसरा कह लो, ठीक है। वेयर डज सेंसरी इनपुट ऑफ एएनएस कम फ्रॉम? हाँ जी, कहाँ से आती है सेंसरी इनपुट? बड़ा जबरदस्त ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ, डॉर्सल से तो आएगी, ठीक है। रिसेप्टर्स से, कहाँ पे होते हैं ये रिसेप्टर्स? विसरा में, विसरा के अंदर। लिस्ट द कंपोनेंट ऑफ एन ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स आर्क। वही भाई जो नॉर्मल रिफ्लेक्स आर्क के होते हैं, 5 कंपोनेंट हैं, ठीक है ना। रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, इंटीग्रेशन, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर, वही 5 है। व्हाट पार्ट ऑफ ब्रेन इज द मेजर कंट्रोल इंटीग्रेशन सेंटर ऑफ एएनएस? अभी बताया पिछली स्लाइड में। What part of brain is the major controller and integration center? Medulla and hypothalamus. What effect does the parasympathetic nervous system have on digestive system? हाँ जी, स्लाइड पीछे करूं? डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट है पैरासिम्पैथेटिक का? देख लो जी। इंक्रीज पेरिस्टालसिस, इंक्रीज सिक्रीशन, रिलैक्सेशन, और ये है, ठीक है।
What effect does the sympathetic nervous system have on liver? Increase glucose production via gluconeogenesis or I think glycogenolysis. देख लेते हैं. Glucose released and glycogenolysis. Glycogen को break down करेगा और ग्लूकोज को बनाएगा via glycogen and gluconeogenesis both. ठीक है. So अब क्या करना चाहिए? अब हमने ये तो कर लिया.